Okay, can you see this slide? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this oscillator is also a feedback amplifier, and it has instead of negative feedback, it utilizes the positive feedback kind of thing. So if this is V naught, and if this is say VE, error voltage, and if this is say VI, this we are referring VF, amplifier with gain A, voltage gain A, feedback network with feedback ratio beta. Now in negative feedback, VF happened to be negative, but now so this was negative earlier. Okay, so with this kind of notation as shown here, if you try to find out VO by VI, which we have named as the gain of the amplifier with feedback, right? In this case, this happens to be the boundary of the feedback amplifier. Okay, so इसका gain जो है वो AF है, right? So this, if you we have already worked out, and it is actually gain of the amplifier without feedback divided by 1 plus A into beta. Correct? That is Yes, sir. when we utilize negative feedback. That means VF is negative. VF is out of phase with the VI, right? And the error voltage is actually VI minus VF. पिछली स्लाइड्स में हमने VI को VS मान लिया था और VE को VI मान लिया था, तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस नोट कर लाना। ये हमने इसलिए किया है कि आगे जो मैं बुक की स्लाइड्स रेफर करूंगा उसमें इन्होंने यही माना हुआ है, सो देयरफॉर आई एम मेकिंग दिस चेंज. So that is the case with the negative feedback. सर VE क्या है यहाँ पर? VE दिख रहा है ना? नहीं सर, रेफर क्या कर रहे हैं? क्या क्या नाम दिया? Error voltage between ठीक है. input signal and the feedback signal. And VE is actually the signal which is given to the amplifier without feedback. Okay. Right? So whereas if you think of a positive feedback situation, then the VE would become VI plus VF, and accordingly the AF will be A over 1 minus A beta. I hope it is convincing. ठीक है ना? Yes, sir. Right. Now in this situation, if I assume that the the product A into beta is actually equal to 1, right? And then what will be the AF? Obviously, with this A Sir, beta equal to infinite हो 1, जाएगा. AF will tend to infinity. And this means simply that in this situation, even if the VI signal is
अगर हम vi को 0 कर दें, ऐसी दशा में भी एक ऐसा सिग्नल है जो इसमें सर्कुलेट कर रहा होगा, even if vi is 0, because af is what? Af is actually v naught by vi, right? And af is tending to infinity. That means v naught is finite. V naught is finite despite the fact that vi has become 0. तो अगर हम इनपुट को हटा दें और उसके बाद एक ऐसा लूप इमेजिन करें कि जिसमें एक एम्पलीफायर है एंड देयर इज वन फीडबैक नेटवर्क, and output of amplifier is given to feedback network, and this is given to the amplifier. And in this situation, if I assume that a and beta is equal to 1, then I can safely say कि ये वो सिचुएशन जब इसमें एक सिग्नल ऑटोमेटिकली सर्कुलेट कर रहा है, और वो कौन सा सिग्नल सर्कुलेट कर रहा है? Which signal is circulating? Signal is right now circulating. First of all, पहले तो ये मानना पड़ेगा there is a signal which is circulating, and for the signal a and beta is equal to 0. I hope you would agree that a is as, it is not a, it is not frequency independent, and so is beta. Beta is also not frequency independent. Therefore, for different frequencies, as would be different and beta s will also be different. Therefore, there will be a particular frequency of signal for which the a mod of a j omega naught will be exactly equal to 1 over mod of b j omega naught. ये वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि ये सिचुएशन आएगी. When this situation happens, that means it is this omega naught signal which is actually circulating in this. Is it okay? Yes, sir. Right? Which means this circuit itself is now generating, this circuit is actually generating a signal, a sinusoidal signal of omega naught frequency. ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी की एक साइनोसॉइड ये जनरेट कर रहा है, अपने आप जनरेट कर रहा है, and therefore we call this kind of circuit a sinusoidal oscillator. Is that convincing now? Okay, so इस चीज को बार्कहाउजन Barkhausen's criteria for sustained oscillation ऐसे कह सकते हैं. For sustained oscillation. ये क्राइटेरिया क्या कहती है? ये कहती है कि there is, if there is an amplifier and if there is a beta network, amplifier with gain AS, beta network with feedback ratio beta S, और अगर इस एम्पलीफायर का आउटपुट इसके इनपुट में दिया गया है और इसका आउटपुट इसके इनपुट में दिया गया है, और इसमें किसी एक फ्रीक्वेंसी पर if mod of a j omega naught, this mod, and mod of b j omega naught is equal to 1, right? एक तो ये बात, और दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक फेज भी होगा, फेज ऑफ a j omega naught होगा ना,
plus phase of bj omega naught. If this phase, sum of these two phases, is either 0 or integral, the integer multiple of 2 pi, which means 2n pi, जिससे कि इसमें जो नेट फेज शिफ्ट इज 0. करेक्ट. सो सपोज किसी एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे जिस पर कि नेट फेज शिफ्ट 0 है, उस पर गेन हैपन्स टू बी लेट अस से 10, राइट, एंड बीटा एस हैपन्स टू बी 1/10, नंबर 1. और उसी फ्रीक्वेंसी पर फेज शिफ्ट फ्रॉम through this network is, let us say, about pi, and phase shift through this is also pi, or let us say minus pi. माइनस पाई है तो टोटल फेज शिफ्ट 0 हो गया, और पाई है तो टोटल फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा? 2 पाई, राइट. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट जो सिग्नल यहां से चला था वही वापस आ गया. सपोज एक सिग्नल इस एम्पलीट्यूड का यहां से चला, यहां गया तो 10 गुना एम्पलीफाई हो गया और पाई फेज शिफ्ट आ गया. सो 10 टाइम्स एम्पलीफिकेशन एंड पाई फेज शिफ्ट. फिर जब ये इससे गुजरा तो फिर से पाई फेज शिफ्ट हो गया और फिर से 1/10 हो गया. तो ऐसा लगा जैसे ये सिग्नल यहां पर जो था वैसे का वैसा वापस आ गया. यू फॉलो द पॉइंट? Yes, Is sir. that okay? Which means Yes, the sir. same signal is now circulating, and it keeps on circulating, which is why we call it sustained oscillation. Circuit is oscillating and it is sustaining this oscillation. It is maintaining this oscillation. It is producing sine wave. Is that correct? Yes, sir. Now question is, where from the signal is initially picked up? हम इसमें कोई सिग्नल तो देते नहीं है. आप देखो कहीं भी क्लोज लूप में कहीं कोई इनपुट नहीं है. करेक्ट. तो ऑसिलेशन होना कैसे शुरू कर देता है? एक्चुअली आपको पता होगा एम्पलीफायर को हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड बायस, है ना, प्लस VCCN माइनस VCC. इज दैट राइट? Yes, sir. जैसे ही हम इस एम्पलीफायर का ये सप्लाई ऑन करते हैं, है ना, तो ऑन करते ही आपको पता होगा जिस समय स्विचिंग होती है, स्विचिंग जब होती है, स्विचिंग मीन्स 0 to प्लस VCC. तो इस मोमेंट पे, राइट एट दिस मोमेंट ऑफ स्विचिंग, right at this moment of switching, ये जो टाइम ऑफ स्विचिंग है, बिकॉज दिस इज steep infinite rise time, therefore right at this moment infinite sine components are generated. Right at this moment what will happen, 0 hertz से लेकर के all infinite frequency components, all signal components are generated right at this moment, not beyond. इसके आगे नहीं, right at this moment. और उनमें से एक सिग्नल वो होता है जिसके लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. Only that signal is picked up by the amplifier. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. So that signal, only that signal is picked up. बाकी सारे सिग्नल पिकअप होंगे नहीं. क्यों? क्योंकि बाकी सारे सिग्नल के लिए A बीटा इज नॉट यूनिटी. वो Sir, सिग्नल like a filter, मतलब वो filter कर रहा है उस सिग्नल को sir. एग्जैक्टली. तो बाकी जो सिग्नल्स हैं वो धीरे धीरे डाई आउट कर जाएंगे. इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम द अदर सिग्नल्स विल बी attenuated heavily, and only one signal will survive. Only one signal will be able to
circulate, and that signal which satisfies these two conditions. This is condition number 1. ये बार्कहाउज़न की पहली कंडीशन है ऑसिलेशन की, और ये दूसरी कंडीशन है. तो आपको याद होना चाहिए that in a positive feedback amplifier, if the product of amplifier gain and beta is unity at a frequency, and if at the same frequency, if the net phase shift around the loop is 0 or 2n pi, then this circuit satisfies the requirement of sustained oscillation and will therefore produce the sine wave of that frequency at which these conditions are satisfied. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Right. So now let us move ahead. तो यहाँ पर वही बताया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसिलेशन में बार्कहाउज़न क्राइटेरिया की बात की गई है. ठीक है, यहाँ देखो पॉजिटिव फीडबैक दिखाया गया है और ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन बताई गई है. ए बीटा इक्वल टू 1, राइट, एंड फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री और 2n पाई. ये उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. ठीक है, अब सबसे पहला ऑसिलेटर जो ये बता, हम लोगों ने पहला ऑसिलेटर क्या पढ़ा था? वी स्टडीड वीन ब्रिज ऑसिलेटर. आपको याद आ रहा है? You remember Wien bridge oscillator, which I discussed? कुछ तो बोलो. Yes, sir. In that Wien bridge oscillator, we were having one amplifier. Sir, Z1, Z2. एक सर ये फीडबैक में Z2 आ जाएगा. एक ये एम्पलीफायर था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिससे कि फेज शिफ्ट 0 था, और एक यहाँ पर मैं लगाया था, सीरीज कनेक्शन. हाँ, एंड देन सर पैरेलल कनेक्शन. तो एक तो एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर, और ये हो गया फीडबैक नेटवर्क. करेक्ट. और फिर हमने एम्पलीफायर के इनपुट पे फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट लगा दिया. अभी क्लोज लूप बन गया. गेन ए और ये हो गया बीटा. अब ये गेन जो ए था, आई टोल्ड यू इफ दिस इज R2 एंड दिस इज R1, then A is 1 plus R2 by R1. और बीटा को हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ RC. तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी? 1/RC S डिवाइड बाई S² प्लस 3/RC S प्लस C². ठीक है, अब इस A बीटा इक्वल टू 1 किसी एक फ्रीक्वेंसी पे होगा. वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? वो ये फ्रीक्वेंसी होगी. ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो है 1/RC. इस फ्रीक्वेंसी पर फेज शिफ्ट 0 हो जाता है इसका. वो मैं बताया था, फेज शिफ्ट 0 करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ S हैज टू बी मेड इक्वल टू 0, एंड फॉर दैट टू बी इक्वल टू 0, R2 by R1 हैज टू बी 2. अगर गेन की वैल्यू 3 हो जाए, ठीक है, तो ऐसी दशा में इस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा. ये दिस वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड. यू रिमेंबर दैट?
Yes, sir. So that was Wien bridge oscillator. What you see now here, another oscillator which is called phase shift oscillator. अब इस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो ऊपर का सर्किट है, ये इन्होंने काफ़ी कुछ हौच पौच कर रखा है. सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना देता हूँ. पहले तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है, और इसके बाद एक है आपका फीडबैक नेटवर्क. फीडबैक नेटवर्क इज ये थर्ड ऑर्डर का है. 3C 3R लगे हुए हैं, ठीक है. अब एक रेसिस्टर यहां भी है. तीनों की वैल्यू सेम रख दी जाए, RC RC और RC, ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि एम्पलीफायर का आउटपुट हम यहां से यहां देंगे. सो हियर आई एम गिविंग VO, और जो फीडबैक वोल्टेज यहां पर है VF, ये हम दे देंगे एम्पलीफायर के इनपुट में, राइट. एक बात जो ध्यान देने की है वो ये कि दिस पॉइंट इज वर्चुअली ग्राउंड. अगर मैं इसको R लिख दूं और इसको RF लिख दूं तो एम्पलीफायर का गेन आप कहोगे R/RF है, RF/R है, कहोगे ना? Yes, sir. गलत. दिस इज नॉट गेन, क्योंकि इस आप देखो गौर से तो इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक और R आ रहा है, ये वाला R, और इसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ये वाला R भी आ रहा है. Isn't it? Yes, sir. So this is not correct. This is wrong. In order to have this correct, what we will require, इन दोनों R में से कोई एक R हटा दिया जाए, काम चल जाएगा. Right? Is that clear to you? हमें इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में एक R चाहिए, तो वो तो ये वाला R भी कर रहा है ना, right? So I am removing Yes, sir. this. I am removing this. तो ये जो आप देख रहे हो सर्किट यहाँ पर, इस सर्किट में इस मॉडिफिकेशन की जरूरत है. इस सर्किट में if you modify, this is the actual oscillator circuit where you require only one R. So this R which is encircled here is playing dual role. This R is playing dual role. It is part of the amplifier also. It is also part of the feedback network. Is it convincing? Yes, sir. राइट. अब आप इसके एनालिसिस करोगे तो बीटा एस जो होगा VO/VF वो ये निकलेगा इस सर्किट का. अगर आप VF/VO निकालो, VF/VO. सर हमने सर आर को क्यों रिमूव किया सर फीडबैक नेटवर्क से? आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे? नहीं सर, समझ नहीं आया सर मुझे. Here if I connect R, that is now a feedback network, right? यस सर. अब इसका अगर आप इस समय VF/VO निकालो तो वो VF/VO आप कहोगे, इनफैक्ट
ऐसा नहीं है कि ये आर यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है ना, यहां से करंट तो जा रही होगी। यस सर। और हमें वी एफ बाई वी कब निकालना है, जब करंट ना फ्लो करे। आप समझ रहे हो, मैंने ओके यहां से उतनी ही करंट फ्लो करे, वो क्या फ्लो करे, वी एफ बाई आर। यहां से करंट क्या फ्लो करनी चाहिए इस समय, द करंट शुड बी वी एफ बाई आर, इतनी फ्लो करनी चाहिए ना। यस सर। लेकिन राइट नाउ इट इज फ्लोइंग वी एफ बाई टू वी एफ बाई आर। इज दैट ओके? ओके सर। तो ये आपको वी एफ बाई वी ओ सही नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब अगर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां से कितनी करंट फ्लो कर रही है, how much is current flowing through this, सर VF by R। vf by r, which means now that you find out vf by vo will be correct। ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ यही मैं बताना चाह रहा था। so that correction has to be kept in mind। so with that, now if you try to find out vf by vo, you get equation 13.8। थर्ड ऑर्डर दिख रहा है ना आपको? यस सर। हैं? और अगर आप गेन निकालो एम्पलीफायर का, तो एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, माइनस आर एफ बाई आर वन। ये आर वन है, ये आर एफ है। इनफैक्ट हमारे वाले में वो आर एफ बाई आर हो जाएगा, राइट। अब व्हाट विल बी दी लूप गेन, दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 13.8 एंड 13.9। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट दिस। इज इट राइट? यस सर। एंड लूप गेन इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें रियल पार्ट को अगर हम जीरो करें तो उससे क्या निकलेगा, रियल पार्ट जीरो करने पर क्या निकलता है, सर ओमेगा की वैल्यू निकल ओमेगा जाएगी। नॉट निकलता है। तो ओमेगा नॉट इससे निकल रहा है, इसका जो रियल पार्ट है इस इक्वेशन का, उसको जीरो करने से you are getting this equation, and from this you are getting omega naught equal to 1 by root 6 RC, राइट। और इसी ओमेगा नॉट को जब हम वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो इमेजिनरी पार्ट से, अब अगर आप इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करो तो यू गेट व्हाट, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। आपने जो ओमेगा नॉट ये सब्स्टिट्यूट किया ऊपर, तो अब आपको ये कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन आ गई, दैट आर एफ बाई आर शुड बी इक्वल टू 29। मतलब समझ में आ गया कि ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसका गेन कितना होना चाहिए, सर 29। 29। और यहां से कितना हो रहा है, दिस इज बिकमिंग 1/29। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट एक हो जाएगा। यस सर। और यहां फेज शिफ्ट कितना हो रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, हियर फेज शिफ्ट इज पाई, विच मीन्स इधर भी फेज शिफ्ट कितना हो रहा होगा, यहां भी पाई हो रहा होगा। तो हर जो आरसी कंपोनेंट है वो कितना कितना फेज शिफ्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, पाई/3। पाई/3, पाई/3 एंड पाई/3। So total phase shift around this is pi, total phase shift around this is pi, so net phase shift is 360, and gain through amplifier is 29, and gain through beta network is 1/29 at that frequency. At what frequency? At frequency 1 by root 6 RC.
1 by root 6 RC. Is that correct? Yes, sir. So that is the phase shift oscillator. फीडबैक नेटवर्क हम जो अभी हमने चूज किया था दैट वाज आरसी फेज शिफ्ट. दैट फीडबैक नेटवर्क कैन बी ए टैंक सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में होते हैं. आप देखो ऊपर ये एम्पलीफायर है, ये इनपुट और ये आउटपुट. इज दैट ओके? और इसका Yes, sir. एम्पलीफायर का आउटपुट हमने इस नेटवर्क को दिया और इसका जो आउटपुट यहां पर है वो हमने फीडबैक कर दिया. तो ये वो सर्किट है जो ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ओमेगा इसको अगर आप एनालाइज करोगे मेरे ख्याल से आप कर पाओगे आगे. अब तो ओमेगा नॉट विल बी व्हाट? ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 by under root LC. Is that okay? Now what will be L? तो ये दिया हुआ है. What will be C? C will be series combination of C1 and C2, which means C1 C2 by C1 plus C2. Is that correct? Yes, sir. And you can find out the condition of oscillation also. ये मैं आप पर छोड़ता हूं. ठीक है, ये निकाल रखा है कुछ. Okay, then there will be another oscillator which is called Hartley oscillator. Hartley में क्या करते हैं? इंडक्टेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, कैपेसिटेंस सिंगल ले लेते हैं. हार्टले का आउटपुट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. कैन यू सी दिस नाउ? Yes, sir. So again here the omega naught will be the same, 1 by 1 by root LC. under root LC. Sir, इस बार L सीरीज में होगा. Right, so L will now be L1 plus L2. ठीक है, बाकी एनालिसिस वैसे ही है इसकी. करेक्ट. सो यू हैव टू, दोनों एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. नाउ दैट फिनिशेज द हार्टले कॉलपिट ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वीन ब्रिज ऑसिलेटर. ठीक है, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू ए नंबर ऑफ अदर ऑसिलेटर्स को एनालाइज करने का मैंने तरीका क्या बताया है कि उसमें अगर आपको एम्पलीफायर नहीं भी दिख रहा हो, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, यू रिमेंबर, कि अगर दो इंटीग्रेटर लूप में है तो भी वो एम्पलीफायर बन जा, तो भी वो ऑसिलेटर बन जाता है. यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. अब वहां एम्पलीफायर तो नहीं है, तो बार्कहाउज़न क्राइटेरिया लग नहीं रही है वहां पर, फिर भी इट इज ऑसिलेटिंग. राइट? तो जरूरी नहीं है कि एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क दिखे आपको. हाँ, लेकिन एक लूप दिख सकता है. लूप में बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, बट देयर मे बी 4. चारों डिस्टिंक्ट ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे और वो एक लूप में है. सबका आपको ट्रांसफर फंक्शन पता हो, अगर A1s, A2s, से B1s एंड से B2s, और ये पता हो, इसमें ये नहीं दिख रहा कौन एम्पलीफायर है, कौन फीडबैक नेटवर्क है, फिर भी आप इसको कहीं से ब्रेक करके लूप को, और एक पॉइंट को आप VI बना दो, दूसरे पॉइंट को VO बना दो, एंड देन फाइंड आउट VO बाई VI. ये जो VO बाई VI होगा, दिस विल बी सर इसे इक्वल टू 1 कर देंगे. NS बाई DS हो जाएगा. करेक्ट. आप इसको यूनिटी कर दो. यूनिटी करने के बाद आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी, वो होगी क्या? NS माइनस DS इक्वल टू 0. ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, ये सेकेंड ऑर्डर की अगर बनती है, जिसको आप कहोगे S स्क्वायर प्लस लेट अस से A माइनस B into S plus C equal to 0. If you get this, then it is obviously indicating that this circuit might oscillate. ये कब oscillate करेगी? When
A equal to B. That will be the condition of oscillation. Is that correct? Yes, sir. और अगर ऐसा हो गया, then what will be frequency of oscillation? Frequency of oscillation omega naught will be Sir, root C. under root C. So that will be the frequency of oscillation, FO. Right? ऐसा भी Yes, पॉसिबल sir. है कि ns बाई डी एस इक्वल जो आप करोगे तो ns माइनस डी एस इक्वल टू 0 सेकेंड ऑर्डर की ना हो करके ये थर्ड ऑर्डर की बन रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है. You might get it like this: A3 S cube plus A2 S square plus A1 S plus A naught equal to 0. ऐसा भी हो सकता है बन जाए, जैसा कि आरसी फेज शिफ्ट में बन रहा था. Is it okay? सर इसके अंदर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? बता रहा हूं. अब आप क्या करोगे, इसमें कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन जो होती है वो होती है A1 बाई A3 will be equal to A naught by A2. This becomes condition of oscillation. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन्हीं दोनों में से कोई एक ले लो. ओमेगा नॉट विल बी अंडर द रूट A1 by A3 और it will be A naught by A2. Is that okay? यस सर. तो आप इस तरह से भी आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को एनालाइज कर सकते हो. सर फोर्थ ऑर्डर एग्जाम में आएगा? नहीं, फोर्थ ऑर्डर की बात नहीं है. Is that correct? ओके सर. कुछ ऑसिलेटर जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेचर ऑसिलेटर, वो क्या होते हैं कि ऑसिलेटर में कई पॉइंट्स हैं. राइट. ऐसा हो सकता है कि सपोज एक ये सर्किट है जो ऑसिलेट कर रही है. ठीक है. इसमें 3 नेटवर्क लूप में लगे हुए हैं और ये ऑसिलेट कर रही है. और हम इसमें ये नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ जो सिग्नल है और जो सिग्नल यहाँ पर है, इन दोनों में पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट है. ठीक है. ऐसे ही जो यहाँ पर है वो भी पाई बाई 2 फेज शिफ्ट से मिल रहा है. ऑब्वियसली दिख रहा है ना. यस सर. अगर यहाँ पर मान लो माइनस पाई बाई 2 शिफ्ट हो, ठीक है, तो ये टोटल फेज शिफ्ट यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया. और अगर इसके थ्रू अगर या सपोज दिस इज पाई बाई 2, तो ये टोटल फेज शिफ्ट हो गया पाई. ठीक है. और यहां से फेज शिफ्ट अगर माइनस पाई कर दूं, देन इट बिकम्स सर जीरो हो जाएगा. 0 हो जाता है ना. तो आपको दो जगह पाई बाई 2 फेज शिफ्ट सिग्नल मिल रहा है एट 2 प्लेसेस. व्हाट आर दोज 2 प्लेसेस? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहां पर पाई बाई 2 फेज शिफ्ट सिग्नल मिल रहा है अपने इसके प्रीवियस इनपुट के कंपैरिजन में. इज दैट राइट? तो जब भी फेज शिफ्ट यस सर. जब भी फेज शिफ्ट पाई बाई 2 का हो, ऐसे ऑसिलेटर को बोलते हैं क्वाड्रेचर ऑसिलेटर. जिस किसी भी ऑसिलेटर से पाई बाई 2 फेज शिफ्ट के साइनसॉइड मिलने शुरू हो जाएं, ऐसे ऑसिलेटर की कम्युनिकेशन में काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है. आपको कम्युनिकेशन जब सर पढ़ाया कोई जाएगा, एग्जांपल है?
You will be taught the example in the communications uh, Okay, subject, sir. right? So you need sine wave with pi by 2 phase shift. करेक्ट. मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन में वहां पर आप देखोगे इसकी जरूरत पड़ती है. और भी बहुत से सिग्नल प्रोसेसिंग में वी नीड दिस शिफ्टेड सिग्नल्स, पाई बाई 2 शिफ्टेड साइनसॉइड्स. तो ऐसा ऑसिलेटर बोलते हैं क्वाड्रेचर ऑसिलेटर. कुछ ऑसिलेटर्स मल्टी फेज ऑसिलेटर भी बोले जाते हैं. where it may not be, you know, only pi by 2, where phase is now in your control to shift, है ना? So that is multi-phase oscillator. Okay, so now this finishes oscillator, right? I have already uploaded these slides to your class. आप मेरी सिर्फ इन नोट्स और लेक्चर स्लाइड्स पे डिपेंड मत कीजिए. प्लीज ऑल्सो गो थ्रू द बुक. And if you have been sincere in my class, if you attended my class, listen to my talk, I'm sure you would be feeling more confident about the subject and you would be enjoying every topic that I have discussed or that we have been able to read in this course. Isn't it? We still have 1 week, classes left next week, and I'll be finishing the remaining topics of the Unit 5, or if there is anything left in the Unit 4. ठीक है? So please don't be absent in the classes. Be available, and so that you can be helped, you can be enriched. अभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो.